Welcome, my dear friends. Today we shall be talking about crystal lattice, unit cell, and crystal systems. This is a very important topic as far as NEET, JEE exams are concerned. Before talking about crystal lattice, which is also called as a space lattice, we must be acquainted with what a lattice is. So, what is a lattice? Lattice is basically a regular arrangement of imaginary points. Regular arrangement of imaginary points, that's called as a lattice. So lattice is nothing but a regular arrangement of imaginary points. What do you mean by regular arrangement? The word regular arrangement here means each point, each imaginary point is having identical surroundings. Identical surroundings. Each point is having identical surroundings. For example, हम यहाँ पे एक lattice बनाएंगे. Suppose you have a point over here, you have the next point over here, you have the next point over here, and the next point over here. So this is the arrangement of imaginary points. Now the point is this a regular arrangement? मतलब ये कि हर एक पॉइंट के अराउंड आइडेंटिकल सराउंडिंग्स होने चाहिए. अगर आप देखेंगे इस पॉइंट को, इफ यू सी दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम दिस पॉइंट एंड इट्स आल्सो अ डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम दिस पॉइंट. दिस इज द पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट. अगर आप इस पॉइंट की बात करेंगे तो दिस इज at a distance of A from this point and at a distance of A again from this point. मतलब इस point और इस point का जो surroundings है that is identical. So जब इन points का surrounding atmosphere identical होगा, then this is the regular arrangement. Such an arrangement which is regular of imaginary points, that's called as a lattice. So this becomes a lattice. I hope you understand it. This is a lattice. So lattice is basically the regular arrangement of imaginary points, that's called as a lattice. Regular arrangement means हर एक point का जो surrounding है that should be identical. मतलब जितना ये point इतने से दूर है, इस point से दूर है, उतना भी ये point इससे और इससे भी दूर होना चाहिए. मतलब there must be identical surroundings for each point. We call that regular arrangement. This is called as a lattice. Now, these lattices are classified into certain categories. Classification. Classification. So classification will be number A, based on its formation. Based on its formation. एक lattice कैसे बना है? तो based on that formation we have certain types of lattices. Number A is, number 1 क्या है इसमें? Line lattice. मतलब वो वाला lattice which makes a line. वो वाला lattice, वो वाला imaginary points का arrangement जो एक line बना सकता है, that can make a line, we call that line lattice. For example, आपके पास ये एक point है यहाँ, दूसरा point यहाँ पे है, तीसरा point यहाँ पे है, fourth point is here, fifth point is here, and they are at a distance of A. This is at a distance of A, this is at a distance of A, this is again at a distance of A, this is again at a distance of A. मतलब इस point का जो surrounding atmosphere है, that is A from this point, A from this point. Same is true with this point also.
A distance from this point, A distance from this point. So all points are having identical arrangement, identical surroundings. This is a regular arrangement of points. लेकिन अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, इफ यू ज्वाइन दीज पॉइंट्स लाइक दिस, it becomes a line. So this lattice which makes a line, we call that line lattice. इसमें एक पैरामीटर डेवलप होता है, दैट्स a. So a here is called as unit translational vector. Unit translational vector. इसे कहते हैं इंटरएक्शियल डिस्टेंस भी, इंटरएक्शियल डिस्टेंस भी इसे कहते हैं, और इसे कहते हैं लैटिस पैरामीटर भी. So there are three names for this distance a, that is it's a unit translational vector, it interaxial distance or lattice parameter. Second is, इसको दूसरा नाम भी है lattice, line lattice का दूसरा नाम भी है 1D lattice. It's also called as one dimensional lattice, one dimensional lattice, because dimension एक ही है. It's also called as 1D lattice or line lattice. नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर 2, हमारे पास है प्लेन लैटिस. मतलब वो वाला लैटिस which forms a plane. That is can be obtained by the intersecting of line lattices. अगर आपके पास बहुत सारे लाइन लैटिसेस है, अगर आप उनको इंटरसेक्ट करवाना चाहते हैं तो वो एक प्लेन बनेगा. दैट लैटिस इज कॉल्ड एज अ प्लेन लैटिस. सो अ लैटिस विच फॉर्म्स अ प्लेन. लेकिन प्लेन कब बनेगा? जब आपके लाइन लैटिसेस इंटरसेक्ट करेंगे. सो व्हेन द लाइन लैटिसेस इंटरसेक्ट, इट फॉर्म्स a two-dimensional lattice. This is also called as a 2D lattice. सपोज आपके पास एक पॉइंट है यहाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, चौथा पॉइंट यहाँ पे है, नंबर 4 5th इज हियर. नाउ दिस वाज अ लाइन lattice. आप एक दूसरा लाइन lattice ऐसे बनाएंगे. ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, सपोज ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है. सिमिलरली हियर so you have the points which are arranged like a plane. So it's having x-axis over here, it's saying y-axis over here. Plane has got two axes, so this becomes a plane lattice. अगर आप देखेंगे इस पॉइंट का, suppose this point is at a distance of a from this point, suppose b from this point, and suppose it's at a distance of b from this point. अगर आप इसका देखेंगे, ये फिर से यहाँ पे a ही होगा, यहाँ से b होगा, यहाँ से b होगा. मतलब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेयर है, दैट इज आइडेंटिकल. तो वी कॉल इट रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स. लेकिन ये 2D में है, 2 डायमेंशंस में है. सो वी कॉल इट अ प्लेन लैटिस. इसमें 2 पैरामीटर्स डेवलप हो गए, एक तो A है, दूसरा B है. सो देयर आर 2 लैटिस पैरामीटर्स एंड देयर इज एन एंगल आल्सो. सो दिस इज कॉल्ड प्लेन लैटिस, 2D लैटिस और सिंपली लैटिस प्लेन. It's also called as lattice plane. There are there was only one parameter, that was only a unit translational vector, a lattice parameter in case of 1D lattice. But in case of 2D lattice, we have 3 parameters now. एक तो हो गया आपका ये distance A, दूसरा हो गया distance B, और उनके दरमियान जो एंगल है, suppose the angle between them is gamma. So we have 3 lattice parameters. Number 1 is A, B, and there is an angle called alpha. These are called lattice parameters, and gamma is called, basically these are called unit translational vectors. Gamma is the angle, that's called interfacial angle. We'll be talking about this later on also. So this is called as a plane lattice. अब अगर आप देखेंगे इस प्लेन लैटिस की तरफ, हम फिर से बनाएंगे ये. We'll make it again. So let's have a look at the plane lattice again. So you have the point over here, you have the point over here, then the third point over here, fourth point over here, fifth point over here. You have one more point over here,
सो अगर आप देखेंगे ये एक प्लेन लैटिस है, दिस इज ए सपोज एंड दिस इज बी, ये उनके दरमियान एंगल है। तो अगर आप इनको ये एक पोर्शन लेंगे, पोर्शन, अगर आप इस पोर्शन को तरफ देखेंगे, अगर आप इसको रिपीट करेंगे, अगर आप इस पोर्शन को मूव करेंगे, ये इसको फिल करेगा, फिर दिस विल फिल अप दिस पोर्शन, फिर से मूव करेंगे, दिस विल फिल अप दिस स्पेस, फिर से मूव करेंगे, ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, फिर से मूव करेंगे डाउन तो ये ऑक्यूपाई करेगा। ये मतलब ये कि ये जो स्मॉल पोर्शन है आपके पास, ये जो स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ लैटिस है, अगर आप इसको मूव कराते हैं, इस डब्बे को, इस बॉक्स को अब आप मूव कराते हैं, ये इस बॉक्स को फिल करता है, फिर इस बॉक्स को, फिर इस बॉक्स को, मतलब ये रिप्रोड्यूस करता है पूरा लैटिस। इट reproduces the whole lattice once this small portion of lattice is moved. This small portion of lattice, which when moved at equal distances so that it forms what? Whole lattice. This portion is called as unit cell. So I hope you understand. ये जो पोर्शन आपके पास है, ये वाला पोर्शन, आपने इसको मूव करा दिया तो ये इस बॉक्स में चला गया, फिर ये बॉक्स डेवलप किया, फिर ये बॉक्स डेवलप किया, फिर ये बॉक्स डेवलप किया, फिर ये बॉक्स डेवलप करेगा, फिर ये बॉक्स डेवलप करेगा, उसके बाद ये बॉक्स डेवलप करेगा। मतलब ये कि इसने पूरा लैटिस को रिप्रोड्यूस करा इस स्मॉल पोर्शन ने। दिस स्मॉल पोर्शन ऑफ लैटिस विच व्हेन मूव्ड produces the whole lattice, we call it unit cell. This is called as unit cell. So unit cell क्या होती है? It's a portion of lattice. Portion of lattice which when moved to produce the whole lattice, to reproduce the whole lattice, ये सारा लैटिस डेवलप करेगा। सो वो वाला पोर्शन लैटिस का, इस लैटिस का वो वाला पोर्शन, अगर आप उस पोर्शन को मूव कराते हैं ताकि ये सारा लैटिस को है रिप्रोड्यूस करेगा, वी कॉल दिस पोर्शन ऑफ लैटिस एज यूनिट सेल। I hope you understand it. Portion of lattice which when moved to reproduce whole lattice, this is called as a unit cell. So इस पोर्शन को हम नाम देते हैं यूनिट सेल। So there are 3 parameters in it. एक तो हो गया आपका A, B interaxial distances, और एक एंगल है that is gamma. Now based on the values of A, B, gamma, we have 5 lattices in 2D. So 2 dimensions में हमारे पास 5 लैटिसेस डेवलप होते हैं बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड गामा। हम लिखेंगे यहां बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड गामा वी हैव 5 लैटिसेस इन 2 डायमेंशंस। सो आपके हम पढ़ रहे हैं इस वक्त नंबर 2, दैट्स प्लेन लैटिस, इट्स आल्सो कॉल्ड एज 2D लैटिस। इस 2D लैटिस में अब 3 पैरामीटर्स डेवलप हो गए, एक A, दूसरा B और तीसरा गामा, दैट इज द एंगल। व्हाट इज देयर वैल्यू? इज A and B सेम और डिफरेंट, एंड व्हाट इज द एंगल? सो बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ दीज पैरामीटर्स A, B, gamma, we have divided this plane lattice into 5 lattices. So we have divided the 2D lattice into 5 lattices. What are they? These are, that is, हमारे पास 5 लैटिसेस है। अब नंबर 1 इज क्लिनोनेट, इनको बोलते हैं नेट्स भी। देयर 2D लैटिसेस आर आल्सो कॉल्ड एज नेट्स, इनको नेट्स भी बोलते हैं। सो दे आर कॉल्ड 2D लैट्स, लाइन लैट्स, प्लेन लैट्स, प्लेन 2D लैट्स, प्लेन लैट्स, और वी कैन से दे आर आल्सो कॉल्ड एज नेट्स, उनको नेट्स भी बोलते हैं। तो जब उनका नेट्स बोलते हैं तो वी हैव 5 लैटिसेस नाउ इन 2D, दैट इज क्लिनोनेट, CLINONET, क्लिनोनेट, दैट्स बेसिकली अ परलोग्राम। परलोग्राम मतलब क्या? परलोग्राम में साइड इक्वल नहीं होते हैं, इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक दिस। सो दिस इज A suppose and this is B. Angle is not 90, so we have A is equal to B, A is not equal to B, and gamma is not equal to 90 degree. This is the feature, this is the description of clinonet. So clinonet is basically a 2D 2-dimensional lattice. कौन सा वाला? जिसमें A बराबर नहीं होता है B का, and gamma is not equal to 90 degree. और जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स यहाँ पे है at corners. 1 point is here, next point is here, 3rd point is here, 4th point is here. Similarly we have the next one that's called as orthonet.
ऑर्थोनेट, ऑर्थोनेट बेसिकली होता है रेक्टेंगल। इससे आपको समझ आता है, जब मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आता है हाउ इट वुड बी। सो इट्स लाइक दिस, रेक्टेंगल में दो साइड बराबर नहीं होते हैं। इफ दिस ए दिस इज बी, एंगल इज 90 डिग्री, सो यू कैन सी ए इज इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी बट गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्थोनेट। और पॉइंट्स कहाँ पे हैं? पॉइंट्स है एट कॉर्नर्स, पॉइंट्स आर एट द कॉर्नर्स। इट्स लाइक दिस, जैसे ये लेट्स बनता है यहाँ, सो पॉइंट्स आर एट द कॉर्नर्स। नंबर नेक्स्ट इज सेंट्रेड ऑर्थोनेट, सेंट्रेड ऑर्थोनेट। सेंट्रेड ये भी रेक्टेंगल ही है, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है? इसमें पॉइंट का फ़र्क है। इट्स ऑल्सो रेक्टेंगुलर, इट्स ऑल्सो रेक्टेंगुलर, बट इट हैज़ अ डिफरेंस ऑफ ओनली पॉइंट। मतलब क्या? ये ऐसे ही है जैसे ऊपर वाला था रेक्टेंगल, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी बट 90 डिग्री है ये। मतलब सेम डिस्क्रिप्शन, ए इज इक्वल टू, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, गामा इज़ नॉट इक्वल टू, गामा इज इक्वल 90 डिग्री, यही डिस्क्रिप्शन है। लेकिन इसमें पॉइंट्स, उसमें पॉइंट्स जो है वो कॉर्नर्स पे थे सारे, लेकिन इसमें एक पॉइंट सेंटर पे भी है। सो दैट्स कॉल्ड सेंट्रेड ऑर्थोनेट। सो ऑर्थोनेट एंड सेंट्रेड ऑर्थोनेट सेम है, बट द डिफरेंस इज फीचर वाइज द सेम है। ए इज नॉट इक्वल टू बी, गामा इज इक्वल 90 डिग्री, बोथ रेक्टेंगुलर है। लेकिन सेंट्रेड मीन्स दैट इट हैज़ वन पॉइंट at center, also it has points only at the corners. This is called a centered orthonet. Number next is hexanet. Hexanet means rhombus. आपको पता होना चाहिए rhombus is basically like this. rhombus में ये साइड इस साइड के बराबर होता है, so a is equal to b, बट गामा जो है 90 डिग्री नहीं है, तो a is equal to b, ये बराबर होते हैं rhombus में, पैरेललोग्राम में बराबर नहीं होते हैं, तो गामा is equal to 90 डिग्री। गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, गामा 90 डिग्री नहीं है, ना ही पैरेललोग्राम में है, लेकिन पैरेललोग्राम में साइड भी बराबर नहीं है, रोम्बस में बराबर होते हैं। सो हेक्सानेट इज ए इज इक्वल टू बी, मतलब ये सेम है, तो जो है एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ हेक्सानेट, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ हेक्सानेट, एंड पॉइंट्स आर एट द कॉर्नर्स, पॉइंट्स आर एट द कॉर्नर्स। देन द लास्ट वन इज टेट्रानेट। टेट्रानेट इज बेसिकली स्क्वायर, स्क्वायर तो पता ही आपको, इट्स लाइक दिस, स्क्वायर में सारे साइड बराबर होते हैं, सो ए इज इक्वल टू बी एंड एंगल्स आर 90 डिग्री, सो ए इज इक्वल टू बी, गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज द फीचर, दिस द डिस्क्रिप्शन ऑफ टेट्रानेट, एंड पॉइंट्स आर एट द कॉर्नर्स। खाली जो है सेंट्रल ऑर्थोनेट में पॉइंट जो है वो सेंटर में भी है, in addition to corners. These are the 5 lattices in 2D, or we can say in nets, in plane lattices. I hope you understand it. The portion of lattice which reproduces the whole crystal lattice, we call it unit cell. And this is the unit cell in 2 dimensions, because we are talking about what? 2D lattice, that is the plane lattice. It's also called as 2D lattice, 2-dimensional lattice. It's also called as lattice plane. It's also called as a net, or we can say nets. So in number 1, based on its formation, अगर लाइन बनेगी तो लाइन लेट्स कहलाता है, उसमें एक ही पैरामीटर डेवलप होता है, दैट इज ए। अगर 3 पैरामीटर डेवलप होते हैं, ए और बी, and there is an angle gamma, we call it a plane lattice, that's called a net, that's called 2D lattice. It is formed by the intersecting of line lattices. उसमें जो है 2D lattice में या nets में 5 lattices develop होते हैं because of the values of A, B and gamma, whether they are same or different. And what is the angle? We have these 5 lattices in case of 2 dimensions, or we can say in case of nets. Now number 3rd category हमारे पास है, so this was the number 1, this is the number 2nd, number 3rd है हमारे पास space lattice, or we can say crystal lattice. So number 3rd is space lattice, or we can say crystal lattice. Crystal lattice मतलब अगर हम स्टेक करेंगे, staking of plane lattices over one another, forms a space lattice. मतलब आपके पास एक लैटिस है, आपके पास सपोज आपके पास एक रूम है, आपको पता है, आप सपोज रूम में बैठे हैं, रूम में होता है फ्लोर और देयर इज अ रूफ, देयर इज फ्लोर, देयर इज रूफ। फ्लोर मीन्स एक प्लेन,
रूफ मीन्स दूसरा प्लेन, ये आपने स्टेक कराया वन ओवर द अदर, इट फॉर्म्स द 3D लैट्स, वी कॉल इट एज स्पेस लैट्स और क्रिस्टल लैट्स, सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज 3 डायमेंशनल लैटिस। सपोज ये आपका फ्लोर है, रूम का ये फ्लोर है, ये आपका छत है मतलब रूफ है, तो आपने इसको ज्वाइन करा, सो ये एक 3 डायमेंशनल लैटिस बना, अगर वहाँ पे पॉइंट्स है तो वी कॉल इट व्हाट्स कॉल्ड टू बी a 3 डायमेंशनल lattice, or we can say it's a space lattice or crystal lattice. So this is the top plane, this is the lower plane. So you have staked one plane over the another. This is called staking. एक ऊपर पे डालना, तो this is called staking. So staking of plane lattices over one another forms a space lattice or 3D lattice. आप दूसरे तरीके से भी ये डिफाइन कर सकते हैं, मतलब it is the regular arrangement of imaginary points, regular arrangement of imaginary points in 3 dimensions, in 3D, that's called space lattice. आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सो रेगुलर अरेंजमेंट मीन्स हर एक पॉइंट का आइडेंटिकल सराउंडिंग्स है इमेजिनरी पॉइंट का, लेकिन ये 3 डायमेंशंस में है, वी कॉल इट स्पेस लैट्स, क्रिस्टल लैट्स और 3 डायमेंशनल लैट्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये ऐसे बनेगा, सपोज ये एक ऐसा पॉइंट है आपके पास, दिस इज द पॉइंट ओवर हियर 1, this is the next point over here, ये कुछ पॉइंट्स का अरेंजमेंट मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे दिस इज द अरेंजमेंट, दिस इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स इन 3D। आपको 3D नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको अभी दिखेगा जब मैं उनको ज्वाइन कराऊंगा। सो इट्स लाइक दिस, ये क्यूब बन गया, सेम हियर, दूसरा क्यूब बन गया, तीसरा क्यूब बन गया। इसका मतलब ये हुआ दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स इन 3 डायमेंशंस, वी कॉल इट एज अ स्पेस लैट्स, 3D लैट्स और अ क्रिस्टल लैटिस। ठीक, अब आप इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए जो ये वाला पोर्शन है, ये पहला वाला क्यूब जो है, इट इज द पोर्शन ऑफ दिस लैटिस विच प्रोड्यूसेस द होल क्रिस्टल लैट्स, दिस कॉल्ड एज यूनिट सेल। So this is the unit cell in 3 dimensions. This is the unit cell in 3 dimensions. So portion of lattice, I repeat it again, portion of crystal lattice, portion of lattice, which when moved to produce the whole crystal lattice, to produce the whole lattice, we call this portion as unit cell. We call this portion as unit cell. आपको एक बात ज़रूरी याद रखनी चाहिए, वो ये कि नोट करनी चाहिए एक बात, यूनिट सेल्स बहुत बन सकती है एक लैटिस में, एक लैटिस में बहुत सारे यूनिट सेल्स बन सकते हैं। व्हाट इज द यूनिट सेल विच यू विल चूज इज जिसमें स्मॉल वॉल्यूम होगा, सो यूनिट सेल इज चोजन, कंडीशन इज जिसमें स्मॉल वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम मस्ट बी स्मॉल, एंड उस यूनिट सेल का जो सिमेट्री है, सिमेट्री ऑफ यूनिट सेल सेम as that of lattice. जो सिमेट्री लैटिस पूरे लैटिस की है, वही सिमेट्री किसकी होनी चाहिए, यूनिट सेल की। सो वो वाली आप चूज करेंगे, और जो जिसका वॉल्यूम क्या होगा, स्मॉल होगा, जिसका वॉल्यूम स्मॉल होगा। सिमेट्री होती ही है सेम, हर एक यूनिट सेल की सिमेट्री सेम ही होती है लगभग। आपको कौन सी चूज करनी है, जिसका वॉल्यूम स्मॉलर होगा, जिसका वॉल्यूम स्मॉलर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2D लैटिस में, 2D लैट्स में आपने ये वाली सेल चूज की थी एज यूनिट सेल। ठीक, अगर आप ये वाली चूज ना करते, ये वाली चूज करते, ये वाली, सो दिस इज द पोर्शन ऑफ लैट्स। अगर आप मूव करेंगे इसको, ये दूसरा ये बनेगा, तो ये वाला यहाँ पे शिफ्ट करिए, पूरा लैटिस बनेगा। सो दिस इज द पोर्शन ऑफ लैटिस विच व्हेन मूव्ड फॉर्म्स द होल लैटिस, वी कॉल इट यूनिट सेल। सो ये स्मॉल पोर्शन भी यूनिट सेल बन गया इतना सारा मूव करके, ये बड़ा वाला पोर्शन भी यूनिट सेल बन गया दो टाइम मूव करके। लेकिन आपको कौन सी चूज करनी है, सिमेट्री दोनों की सेम है, अब कौन सी चूज करेंगे आप, विच हैविंग स्मॉलर वॉल्यूम, सो ये वाला जो है
this to be chosen and this bigger one is not to be chosen, because वो वाली चूज करनी होती है यूनिट सेल जिसमें स्मॉलर वॉल्यूम होगा, दैट इज द कंडीशन। सो ये आपको जो है याद रखनी चाहिए ये बातें। I hope you understand it. This is the crystal lattice, or we can say space lattice, or we can say three-dimensional lattice in 3 dimensions. Now, ये जो लैटिस है इसमें 3 पैरामीटर सब डेवलप हो गए। देखिए आप यहाँ इसमें अब 3 पैरामीटर, एक अगर आप ये देखेंगे ये वाला दिस ए, सपोज ए डिस्टेंस, ये सपोज बी डिस्टेंस है, ऊपर वाला सपोज सी डिस्टेंस है। तो ए के अपोजिट में यहाँ पे मैं जूम करूँगा, आई जूम इट ओवर हियर, ये ऐसे बना आपको, एक ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे। सो दिस इज ए डिस्टेंस, दिस इज हियर बी डिस्टेंस, दिस इज हियर सी। सो these are the interaction distances, or we can say these are the unit translational vectors, or we can say these are the lattice parameters. A के अपोजिट में जो एंगल बनेगा we call that alpha, B के अपोजिट में जो एंगल बनेगा we call that beta, और C के अपोजिट में जो एंगल बनेगा we call that gamma. So there are three इंटरएक्शनल डिस्टेंसेस, एंड अल्फा बीटा गामा जो एंगल्स हैं उनको हम नाम बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज इंटरफेशियल एंगल. सो वी हैव ए कामा बी कामा सी एज इंटरएक्शनल डिस्टेंसेस, एंड अल्फा बीटा गामा जो है दे आर कॉल्ड इंटरफेशियल एंगल्स. सो इंटरफेशियल एंगल्स उनको बोलते हैं, एंड इनको बोलते हैं इंटरएक्शियल डिस्टेंसेस. So alpha, beta, gamma are the interfacial angles. A, B, C are the interaxial distances or unit translational vectors. So depending upon now the value of A, B, C, alpha, beta, gamma, we have different types of what? Lattices in 3 dimensions. Before talking about that, let me tell you one more thing, that is a point कहाँ पे हो सकता है. Where are the points located? So depending upon the location of points, we classify space lattices in 4 lattices. We divide space lattices into 4 lattices depending upon the location of points. So space lattice में अब 2 किस्म की classifications develop होते हैं. We'll be talking about them one by one. Let's see. So स्पेस लैटिस जो हम पढ़ रहे हैं, या क्रिस्टल लैटिस, या आप जो पढ़ रहे हैं अब 3 डायमेंशनल लैटिस, इसमें क्या है, इसमें अब क्लासिफिकेशन डेवलप हो गई, अपनी क्लासिफिकेशन. क्या मतलब? नंबर ए आ गया इसमें, बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ पॉइंट्स. बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ पॉइंट्स we have 4 lattice types. That is, number 1 is primitive lattice. इसको बोलते हैं सिंपल लैटिस भी. ये हम 3 डायमेंशन में बात कर रहे हैं, 3D में बात कर रहे हैं. तो व्हाट इज इट? प्रिमिटिव लैटिस और सिंपल लैटिस वो वाला लैटिस होता है जिसमें पॉइंट्स होंगे खाली, पॉइंट्स ओनली एट कॉर्नर्स. पॉइंट्स खाली होंगे कॉर्नर्स पे. सपोज आपके पास ये एक क्यूब बनाया है मैंने, यहां क्यूब, ये मैंने क्यूब बनाया है. सो इसमें जो पॉइंट्स होते हैं दे आर ओनली एट द कॉर्नर. सो एक पॉइंट यहां, दूसरा पॉइंट यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां. Similarly, these are the 8 corners over here. हर एक कॉर्नर पे एक पॉइंट है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ प्रिमिटिव लैटिस. सो प्रिमिटिव लैटिस और सिंपल लैटिस वो वाला लैटिस होता है 3 डायमेंशंस में जिसमें लैटिस पॉइंट्स होंगे खाली एट द कॉर्नर्स. अब दूसरा क्या आएगा? नंबर सेकंड इज बेसिकली BCC, बॉडी सेंटर्ड लैटिस. बॉडी सेंटर्ड लैटिस मतलब ये हम प्रिमिटिव हम डिनोट करते हैं P से, बॉडी सेंटर्ड लैटिस जो है वो I से डिनोट करते हैं. तो इसमें जो है, इसमें पॉइंट्स कहाँ हैं? इट हैज पॉइंट्स एट कॉर्नर्स एंड एट सेंटर ऑफ लैटिस, एंड एट सेंटर ऑफ लैटिस. मतलब ये कि सपोज आपके पास ये क्यूब मैंने बनाया है अगेन,
सो इट हैज़ पॉइंट्स एट द कॉर्नर्स, ये एक कॉर्नर है, हर एक कॉर्नर पे एक एक पॉइंट है, और इट हैज़ पॉइंट एट द सेंटर, जो बीच में जो एरिया बचता है बीच में, इसका एक पॉइंट वहां पे भी है बीच में अंदर, तो वी कॉल दिस एज बॉडी सेंटर्ड लैटिस। वो वाला, इसमें पॉइंट्स होते हैं एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स तो पॉइंट्स है ही, और इट हैज़ पॉइंट एट द सेंटर आल्सो, सेंटर आल्सो। दिस इज कॉल्ड एज बॉडी सेंटर्ड लैटिस। ये हम दिखा रहे हैं लोकेशन ऑफ पॉइंट्स। सो नंबर थर्ड इज फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड लैटिस। ये हम डिनोट करते हैं एफ से। सो इट हैज पॉइंट्स, it has points at corners and at center of each face। अगर आप अपने कमरे की तरफ देखेंगे जहां पर बैठे हैं, तो उसमें जो है उस रूम में फेसेस कितने बनते हैं? 6 फेसेस बनते हैं। एक तो आपका दायां वाया होगा, दायां वाला फेस, लेफ्ट वाला फेस, टॉप वाला रूफ जो उसके बोलते हैं, फ्लोर एक, रूफ एक, अपोजिट वाला फेस, दायां बायां आगे पीछे जो सारे फेसेस बनते हैं, वो ये सारे फेस यहाँ पे भी बन रहे हैं। सो इट हैज़ पॉइंट्स एट द कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। अगर आप ये साइड वाला फेस देखेंगे, ये साइड वाला फेस, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसके अपोजिट में ये फेस आ रहा है, तो इसमें पॉइंट एक यहाँ है। टॉप वाला रूफ जो है इसमें पॉइंट यहाँ पे है, फ्लोर जो है इसमें पॉइंट यहाँ पे है, पीछे वाला फेस जो है उसमें भी पॉइंट होगा, तो आगे वाला जो ये वाला फेस है उस पर भी पॉइंट होगा। मतलब हर एक फेस पे एक एक पॉइंट होगा। इट इज़ डिफिकल्ट टू ड्रॉ ओवर हियर इन 2 डायमेंशंस ऑन दिस बोर्ड, लेकिन आपको समझ आ रहा है। अगर आप रूम में बैठे हैं तो रूम में जो आपका कमरा है, कमरे की तरफ 6 फेस होते हैं। एक तो जहाँ से आप फ्रंट वाला फेस, आपका बैक वाला फेस, आपका राइट वाला फेस, आपका लेफ्ट वाला फेस, आपका टॉप वाला फेस जहाँ पे फैन लगा हुआ है, और आपका नीचे वाला जहाँ पे बैठे हैं वो वाला फेस। हर एक फेस पे एक एक पॉइंट होगा, एंड देयर आर एट द कॉर्नर्स आल्सो पॉइंट्स। सच अ सिस्टम, सच अ लैटिस, वी कॉल इट एज अ फेस सेंटर्ड लैटिस। नाउ वी हैव वन मोर थिंग, दैट इज बेस सेंटर्ड, बेस सेंटर्ड, और वी कैन से एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड लैटिस। तो ये हम डिनोट करते हैं या ए से, या बी से, और या सी से, या ए या बी और सी से हम ये डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? इट हैज पॉइंट्स एट कॉर्नर्स, इट हैज पॉइंट्स एट कॉर्नर्स एंड एट सेंटर ऑफ 2 opposite faces। एट सेंटर ऑफ 2 अपोजिट फेसेस। मतलब क्या? मतलब ये कि आपके पास जो है, सपोज ये क्यूब है, सपोज दिस इज अ क्यूब ओवर हियर, इट हैज पॉइंट्स एट द कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर ऑफ 2 अपोजिट फेसेस। अगर आप टॉप वाला फेस लेंगे, ये वाला फेस, ये इस सेंटर पे एक पॉइंट। अगर आप नीचे वाला फेस लेंगे तो इस सेंटर पे एक पॉइंट। तो टॉप एंड अपोजिट फेस पे, अगर आपका जिस कमरे में बैठे हैं आप, तो ऊपर वाला फेस जो है जिसमें फैन लगा हुआ है वहां पे एक पॉइंट है, तो उसी के अगेंस्ट जो नीचे वाला फ्लोर है, वहां पे एक पॉइंट है। 2 अपोजिट फेसेस पे जो पॉइंट्स होते हैं, बाकी किसी फेस पे पॉइंट नहीं होना चाहिए। वी call it end centered or base centered lattice, end centered or base centered lattice। So we have 4 types of lattices as far as location of points is concerned in 3 dimensions, or we can say in space lattice। So space lattice में अपनी classification develop होती है based on first location of points। अगर points खाली होंगे at the corners, we call it primitive lattice, simple lattice। अगर points होंगे at the corners and at the center of crystal, center of lattice, we call it body centered lattice। अगर points होंगे at the corners as well as at the all faces, center of each face, we call it face centered lattice। अगर points होंगे at the corners and at the faces which are opposite to each other,
only two faces वहाँ पे point होंगे, center of two opposite faces, and it has no point at the other faces. We call it as body centered, base centered और end centered lattice. ये हम डिनोट करते हैं या A से. अगर सपोज इस वाले अपोजिट फेस पे आपने पॉइंट्स डाल दिए तो A बन गया, अगर फ्रंट और बैक वाला डाल दिया तो B बनेगा, अगर राइट और लेफ्ट वाला डाल दिया तो C बनेगा. इस तरीके से हम डिनोट करते हैं या A से या B से या C से. So I hope you understand the types of lattices in 3 dimensions as far as location is concerned. Now we have one more thing, that is based on the values of A, B, C. क्योंकि इस 3 dimensions में 6 parameters हमारे पास है. एक तो हो गया A, B and C, दूसरा alpha, beta, gamma. So what is the value of A, B, C, alpha, beta, gamma? We have divided 3-dimensional lattices into 7 crystal systems. So number B हम लिखेंगे यहाँ. Number B, depending upon the value of A, B, C and alpha, beta, gamma, we have 7 basic crystal systems. हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम डेवलप होते हैं. वी हैव 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम्स डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ ए बी सी अल्फा बीटा गामा. अभी हमने पढ़ा 4 टाइप्स ऑफ लैटिसेस, वो क्लासिफिकेशन थी 3 डायमेंशंस की ऑन द बेस ऑफ लोकेशन ऑफ पॉइंट्स. अब लोकेशन नहीं है, अब हम डिस्कस करते हैं वैल्यूज ऑफ ए बी सी अल्फा बीटा गामा. सो वी हैव 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम्स एज फार एज द values of A, B, C, alpha, beta, gamma is concerned. So we'll write them one by one over here. First of all हमारे पास है, हम यहाँ पे लिखेंगे crystal system. और यहाँ पे हम लिखेंगे उसका फीचर या डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं. और यहाँ पे हम लिखेंगे लैटिसेस, इसमें कितने होंगे. देखिए थोड़ा सा बड़ा ही बनाएंगे हम ये. आई विल मेक इट थोड़ा बिगर. हम यहाँ डालेंगे ये लाइन, तो यहाँ डालेंगे हम लैटिसेस. You can see over here the crystal system is first of all cubic, then there is tetragonal, then there is orthorhombic, then there is monoclinic, then there is triclinic, orthocubic, tetragonal, orthorhombic, monoclinic, triclinic. Then there is rhombohedral, इसे कहते हैं ट्राइगोनल भी. Then there is hexagonal. So these are the 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 7 basic crystal systems. Now उनका फीचर क्या है? The feature is क्यूबिक में जो है, क्यूबिक में is A is equal to B is equal to C. सारे साइड बराबर होते हैं, हर एंगल जो है वो 90 होता है. ये आप सबको पता है 90 होता है. टेट्रागोनल में क्या करना है आपको? टेट्रागोनल में क्या करना है आपको? आपको जो अगर ये क्यूब है, सपोज आई एम शोइंग इट ओवर हियर, अगर ये क्यूब है आपके पास, अगर आपके पास ये क्यूब है, इस क्यूब को ये साइड सपोज A है, ये साइड B है, ये साइड क्या है C, एंड दे वायर सेम, दे वायर इक्वल, ए बी इक्वल. लेकिन आपको क्या करना है, जो आपका ये रूफ है, रूफ छत जो है वो आपको थोड़ा सा ऊपर खींचना है. जब आप इस रूफ को ऊपर खींचेंगे तो C विल इंक्रीज. नाउ A एंड B विल रिमेन सेम, मतलब A इज स्टिल इक्वल टू B, बट जो C है वो ज़्यादा ऊपर चढ़ा, मतलब दैट इज नाउ डिफरेंट, वो लेंथ डिफरेंट है फ्रॉम A एंड B. सो दैट बिकम्स टेट्रागोनल. सो आपको क्या करना है, आपको क्यूब के जो छत है उसको ऊपर खींचना है, तो यू विल गेट टेट्रागोनल, दैट इज A इक्वल टू B is not equal to C. बाकी सारे एंगल जो है वो सेम ही रहेंगे, because you have not changed the angles, you have shifted the roof up. So that is alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree.
अब क्यूबिक में कितने लैटिसेस डेवलप होते हैं? इसमें 3 लैट्स होते हैं, एक तो हो गया प्रिमिटिव, दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड, तीसरा होता है फेस सेंटर्ड, जो मैंने अभी आपको लोकेशन के हिसाब से बताया। सो प्रिमिटिव मीन्स पॉइंट्स एंड ओनली एट द कॉर्नर्स, बॉडी सेंटर्ड मीन्स पॉइंट्स एट द कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर, फेस सेंटर्ड मीन्स पॉइंट्स एट द कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। टेट्रागोनल में कितने होते हैं? 4 होते हैं, चारों के चारों होते हैं, बॉडी सेंटर्ड भी, फेस सेंटर्ड भी एंड बेस सेंटर्ड भी। हम सी से डिनोट करेंगे बेस सेंटर्ड भी। नाउ ऑर्थोरोम्बिक क्या होता है? ऑर्थोरोम्बिक आप याद रखेंगे शू बॉक्स, यू कैन रिमेंबर इट एज शू बॉक्स। जब आप शू खरीदते हैं बाजार से तो उसका क्या, उसके तीनों साइड डिफरेंट होते हैं। इट्स लाइक दिस, उसका ये लेंथ जो है ये ए होता है, ये बी होता है हाइट, और लेंथ सी भी डिफरेंट होता है। मतलब उसके जो साइड्स हैं, ये साइड, बी साइड, सी साइड, तीनों साइड डिफरेंट होते हैं, लेकिन एंगल जो है, एंगल हर एक 90 डिग्री होता है। मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी। आप शू बॉक्स याद रखेंगे। सो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें खाली 2 लैटिसेस डेवलप होते हैं, एक तो हो गया पी, दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड, दैट इज आई। सॉरी, यहाँ पे एक गलती हुई है। जो ये टेट्रागोनल, इसमें खाली 2 लैटिसेस डेवलप होते हैं, खाली 2 लैटिसेस यहाँ पे डेवलप होती हैं फॉर दैट इज पी एंड प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल में है। लेकिन ऑर्थोरोम्बिक में सारे लैटिसेस डेवलप होते हैं, दैट इज प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड बेस सेंटर्ड। नाउ वी हैव मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में भी क्या है? मोनोक्लिनिक इज बेसिकली हैविंग shoebox type structure as was in orthorhombic, that is A is not equal to B, not equal to C। लेकिन एक एंगल जो है वो शिफ्ट हुआ है, एक एंगल आपने चेंज किया है, बाकी 2 एंगल सेम है। मतलब अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू बीटा, बट बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन अल्फा 90 डिग्री नहीं होता है। सो एक एंगल नहीं, अल्फा जो एंगल है दैट्स नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा और गामा जो है वो 90 डिग्री होते हैं। इसे कहते हैं मोनोक्लिनिक। सो इसमें 2 लैटिसेस डेवलप होते हैं, एक पी, दूसरा आपका सी है, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड, और वी कैन से बेस सेंटर्ड। ट्राइक्लिनिक में इट्स द मोस्ट अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, अनसिमेट्रिकल इन द सेंस के मोस्ट अनसिमेट्रिकल। सो A is not equal to B, is not equal to C, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, इज नॉट इक्वल टू गामा। एक तो खुद के बराबर नहीं है और 90 भी नहीं है। सो दिस इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल। इसमें खाली एक लैटिस होता है, दैट्स प्रिमिटिव। सो मोस्ट अनसिमेट्रिकल, मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन सा लैटिस होता है? दैट इज द ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ट्राइक्लिनिक सिस्टम, इसमें ना साइड्स बराबर होते हैं, ना एंगल्स बराबर होते हैं खुद से, और ना फिर वो बराबर होते हैं 90 के। दे आर ऑल डिफरेंट। रोम्बोहेड्रल के में क्या होता है? ट्राइगोनल, आपने पढ़ा होगा ट्राइगोनल स्ट्रक्चर्स लाइक ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ये ऐसी होती है। उसमें साइड्स बराबर होते हैं, एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होते हैं, दे आर 60 डिग्री और समथिंग एल्स। सो वी कैन से ओवर हियर दैट इज ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। हर एक साइड बराबर होता है, लेकिन एंगल जो है अल्फा बराबर होते हैं बीटा के, बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें खाली एक लैटिस डेवलप होता है, दैट्स प्रिमिटिव। इन केस ऑफ हेक्सागोनल, ए इज इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, वो 90 डिग्री होते हैं, लेकिन गामा इज नॉट इक्वल टू 90, दैट इज एक्चुअली 120। इसमें भी एक लैटिस डेवलप होता है, दैट्स प्रिमिटिव। सो दीज आर द क्रिस्टल सिस्टम्स, दीज आर द डिस्क्रिप्शंस ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स जो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। दैट इज हैविंग लैटिसेस। सो टोटल नंबर ऑफ लैटिस अगर आप काउंट करेंगे, यहाँ टोटल लैटिसेस ये हो गए 3, ये हो गए 2, हो गए 5, 5 और 4 हो गए 9, 10, 11, 12, 13, 14, देयर आर 14 लैटिसेस। इनका दूसरा नाम भी है, दैट्स कॉल्ड ब्रेविस लैटिसेस। ये 14 लैटिसेस होते हैं इन 3 डायमेंशंस एज फार एज as far as these parameters, the value of parameters is concerned. So we have 7 basic crystal systems. Number 1 is cubic, number 2 is tetragonal, orthorhombic, monoclinic, triclinic, rhombohedral, that's also called as trigonal, and we have hexagonal. These are the 7 basic crystal systems. And आप कैसे याद रखेंगे? cubic तो आपको पता ही है,
A is equal to B is equal to C, अल्फा is equal to बीटा is equal to गामा is equal to 90 डिग्री। स्क्वायर शेप्ड स्ट्रक्चर है तो हर एक एंगल भी बराबर होगा 90 के, हर एक साइड भी बराबर होगा। इस क्यूब को आपको क्या करना है, आपको रूफ को ऊपर खींचना है। जब आप छत को ऊपर खींचेंगे तो सी विल बी डिफरेंट, लेकिन एंगल में चेंज नहीं आएगा। सो एंगल आर स्टिल 90 डिग्री, लेकिन सी डिफरेंट फ्रॉम ए एंड बी। नाउ इसमें दो लेट्स होते हैं, पी एंड आई होता है। अब ऑर्थोरोम्बिक में कैसे आप याद रखेंगे, इट्स अ शू बॉक्स। शू बॉक्स में कोई साइड बराबर नहीं होता है, लेकिन एंगल फिर भी 90 होते हैं। सो नो साइड इज इक्वल, एंगल्स आर स्टिल 90 डिग्री। इसमें 4 लैटिस होते हैं, पी एफ। सारे लैटिसेस जो है, जो हमने पढ़े हैं ऑलरेडी, वो सारे इसमें आते हैं ऑर्थोरोम्बिक में। और मोनोक्यूलिक में क्या होता है, यही शू बॉक्स है, लेकिन एक एंगल जो है वो चेंज हुआ है। मतलब क्या, अल्फा वाला एंगल चेंज हुआ, बाकी इक्वल टू 90 डिग्री है, यही शू बॉक्स वाला है। और ट्राइक्यूलिक यही शू बॉक्स वाला है। एंगल सारे, अभी मोनोक्यूलिक में एक ही एंगल चेंज हुआ था, अब सारे एंगल चेंज हुए एंड दे आर नॉट इक्वल। दिस इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल। और रोम्बोहेड्रल इज आल्सो कॉल्ड एज ट्राइगोनल। आपने पढ़ी होगी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, जिसमें एक ऐसे होता है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, इसमें सारे साइड बराबर होते हैं, लेकिन एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री बट दे आर इक्वल। एंगल्स आर इक्वल लाइक इक्विलेटरल, इट बिकम्स इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपने पढ़ा होगा ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, उसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड्स भी बराबर होते हैं और एंगल्स भी बराबर होते हैं, बट दे आर नॉट 90। सो सेम हियर, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, साइड्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल बट नॉट 90 डिग्री। सो दैट यू कैन रिमेंबर फ्रॉम ट्राइगोनल, दैट्स कॉल्ड रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर, रोम्बोहेड्रल सिस्टम। हेक्सागोनल में क्या है, दो साइड्स बराबर होते हैं, एक साइड बराबर नहीं होता है। एंगल्स दो 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री नहीं होता, वो 120 होता है, और ये भी आता है इन प्रिमिटिव लैटिस। सो टोटल नंबर ऑफ लैटिसेस जो आते हैं in case of these crystal systems in 3D, that is 14 Brabus lattices. So these are the lattices on the basis of location, and these are the lattices on the basis of what, values of parameters. So total number of lattices कितने बनेंगे इसमें, 14. I hope you understand it. One more point I should add here is कि जो यहाँ पे मैंने points दिखाए हैं, these are the points, they are also called as lattice points. उनको बोलते हैं lattice points भी, और इनको बोलते हैं लैटिस साइट्स भी। तो अगर आप देखेंगे लैटिस साइट्स और लैटिस पॉइंट्स कितने हैं, इन केस ऑफ प्रिमिटिव वी हैव 8 लैटिस पॉइंट्स, 4 ऊपर 4 नीचे। इन केस ऑफ बॉडी सेंटर वी हैव 9 लैटिस पॉइंट्स। इन केस ऑफ फेस सेंटर वी हैव 14 लैटिस पॉइंट्स। कैसे, 4 ऊपर कॉर्नर वाले, 4 नीचे कॉर्नर वाले, हो गए 8, और 6 फेसेस, 1 2 3 4 5 6, 8 और 6 हो गई 14। Similarly, in case of this, we have 8, 9, 10. We have 10 lattice points. So you can see the lattice points कितने हैं इनमें. So you can also remember this. कभी कभार आता है, how many lattice points are there in primitive? We have 8 lattice points. How many lattice points are there in body center lattice? That's 9. So इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं. I hope you understand it, and you must remember what I told you right now about these crystal systems. Now one point I should add over here is, ये सारा जो हमने पढ़ा, दिस इज द क्रिस्टल पॉइंट, इमेजिनरी पॉइंट्स, दिस वर द इमेजिनरी पॉइंट्स। लेकिन अगर आप इन पॉइंट्स में, नाउ इन लैटिस में, जो लैटिस हमने डेवलप करा, इसमें आप अगर बेसिस डालेंगे, बेसिस मीन्स पार्टिकल्स, जहां जहां पे आपका जो पॉइंट था, मतलब अगर मैं यहां पे एक क्यूब लैटिस बनाऊंगा, आई विल मेक ए लैटिस दैट्स अ क्यूबिक लैटिस। सो मैंने यहाँ पे एक क्यूबिक लैटिस बनाया है। सपोज दीज आर द पॉइंट्स, ये प्रिमिटिव लैटिस, सपोज ये प्रिमिटिव लैटिस है। सो इस प्रिमिटिव लैटिस में आपने ऐड किए हैं पार्टिकल्स ऑफ आइंस, पार्टिकल्स ऐड किए हैं। पार्टिकल में डिनोट करूंगा सर्कल से, ठीक। तो पार्टिकल कैन बी हियर आइन, इट कैन बी एटम, इट कैन बी समथिंग एल्स, से मॉलिक्यूल होगा, ठीक। सो इट कैन बी एटम और आइन, पार्टिकल। तो ये क्या बनाएगा, दिस इज कॉल्ड एज बेसिस, पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज बेसिस, ये बनाएगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दिस बिकम्स अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा, क्या मतलब, आपका यही क्यूब डेवलप होगा, द सेम क्यूब यू विल फॉर्म, बट इंस्टेड ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स देयर आर नाउ पार्टिकल्स, because you have replaced points by means of particles. So this is called as a crystal structure. So crystal structure में particles होते हैं, मतलब atoms या ions होते हैं, तो वो बनता है crystal structure from lattices. So जब आप lattice तस्वर करते हैं, imagine करते हैं कि इसमें यहाँ points है, तो accordingly उन points को replace करके आप particles डाल सकते हैं जिनका नाम है bases. So we are getting a crystal lattice. So we are getting a crystal structure. So crystal structure is formed by incorporating bases, which means particles,
at lattice points of crystal lattice, at lattice points of crystal lattice. So ये lattice points होते हैं, इनकी जगह आप particles डालते हैं एक crystal lattice में, जो वहां पे बनेगा, that's called as what? Crystal structure. So this is the crystal structure. I hope you understand this. I hope you understand this. So this was about the lattices, unit cells and types of lattices. I hope you understand it. And if you like my videos, please do not hesitate to share and subscribe my channel. Thank you very much.